Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay. So we were discussing about the models or views of consumer decision making. Economical model discussed, passive view model discussed, cognitive view or model discussed, impulsive also discussed. Right, 4 models थे ये चारों के चारों डिस्कस हो चुके हैं. इन फर्स्ट मॉडल वी हैव दैट कि कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, he has some pocket in his, he has some money in his pocket and according to that money he take the buying decision. Fine. Second, as in passive model, what consumer do? Consumer always purchase the things by the promoted by the marketers, right? Second, the third is cognitive model. They always provide proper researching by the things. Impulsive, they take emotional decisions to buy the product. Next is levels of consumer decision making. What are the different levels in which consumer take the decision? The decisions to buy shaving cream, a tennis racket, a personal computer, and a new car are all very different. If all purchase decisions require extensive efforts, then consumer decision making would be an exhausting process, would leave time for anything else. Types of buying habit of consumer situation are also known as levels of consumer decision making. मतलब कंज्यूमर की बाइंग हैबिट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से जो कंज्यूमर सिचुएशन के हिसाब से उसकी बाइंग हैबिट क्या है, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. Levels of decision making process. Consumer decision making varies with the type of buying decision. कंज्यूमर का जो परचेज करने का डिसीजन होता है वो बाइंग डिसीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है. ऑन द अदर एंड, इफ ऑल द परचेजेस वर रूटीन, अगर सारी की सारी परचेजेस रूटीन परचेज है, then they would tend to be monotonous and would provide little pleasure or novelty. अगर उनकी डे टू डे परचेज है, सेम प्रोडक्ट बार बार खरीद रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उस चीज में कम प्लेजर देते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो दे फील प्लेजर, दे सर्च मोर इंफॉर्मेशन, राइट. On a continuum of effort ranging from very high to very low, we can distinguish 4 specific level of consumer decision making. There are 4 specific levels in which consumer take the decision. First is complex buying behavior. Complex buying behavior is that in which we want to buy some exclusive product, means we are going to have some high priced items, ठीक है, जिसका डिसीजन हम रोज रोज नहीं लेते हैं. We take the decision one 10 year in a 10 years or 5 years, like we are buying a car, we are buying a home. So this is known as the complex buying behavior. Second is dissonance reducing buying behavior. Dissonance means कोई भी आपके माइंड में ये है मतलब किसी भी चीज को लेके कुछ गलत फीलिंग है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए आप कोई चीज खरीद रहे हो, दैट इज नोन एज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, राइट. थर्ड इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. Habitual buying behavior is your day-to-day routine behavior in which you buy several items, like you are going to a shop and buying a toothpaste or toothbrush, you are going to a shop purchasing your bath soap, your face wash, your grocery items, salt, Maggi. These are all your habitual buying behavior. And fourth is variety seeking buying behavior. Variety seeking buying behavior is that in which you love to buy the things which are very new to the शॉप, ठीक है, और आपके लिए भी न्यू है और नई मार्केट में आई है. जैसे कोई भी न्यू टाइप की ब्रेड आई है, न्यू टाइप के नूडल्स आए हैं आपके, एंड न्यू टाइप की जैम आई है कोई आपकी, ठीक है. तो दिस आर ऑल द वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, और अ टाइप ऑफ न्यू बिस्किट, और अ टाइप ऑफ न्यू नमकीन. सो दिस इज ऑल व्हाट द वेराइटी सीकिंग. या कोई भी आपकी न्यू क्रीम आई है, तो ये सब क्या होती है, वेराइटी सीकिंग. इनमें हम यूजुअली वेराइटी देख लेते हैं, ठीक है. नहीं, हम क्या करते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो ग्रोसरी या बेकरी शॉप पे तो हम मैक्सिमम कहते हैं कि जो नया कोई नया फ्लेवर दिखाइए, कोई नया फ्लेवर दिखाइए. आइसक्रीम लेने जाते हैं, वी सर्च आउट फॉर समथिंग न्यू, ठीक है. तो ये हमारे होते हैं वैरायटी सीकिंग. सो बेसिकली we have the 4 types of levels of consumer buying behavior. Complex buying behavior, that is for the high priced item in which the buying takes place
in 10 to 20 10 years or after 5 years or around 8 years means मतलब 5 से 6 साल में हम बाइंग करते हैं, ठीक है। डिसोनेंस रिड्यूसिंग कि अगर हमें किसी चीज को लेकर डाउट है तो उस डाउट को दूर करने के लिए व्हाट वी आर बाइंग, दैट इज नोन एज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग behavior. Third is habitual buying behavior, means we are in a routine way to buy the products. Variety seeking, we search for new things. जब हमें कुछ नया चाहिए होता है, जैसे हम अपने क्लोथ्स भी खरीदते हैं तो हमें हर ओकेजन के लिए अलग अलग चाहिए होते हैं, तो that is the variety seeking buying behavior. Next is your high involvement. High involvement क्या होता है? Significant differences between brand, complex buying behavior. कॉम्प्लेक्स बाइंग नहीं है, मतलब आप क्या देख रहे हो कि बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट होता है दो में, जिनमें आपका है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड, अ पर्सन हु इज बाइंग द लोकल क्लोथ एंड अ पर्सन हु इज बाइंग द ब्रांडेड क्लोथ, so there is a significant difference between the buying behavior, so that is known as the complex buying behavior. ठीक है। उसके बाद है फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स, ब्रांड्स के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, तो दैट इज नोन एज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। सपोज अगर हम कोई भी दो बड़ी बड़ी कंपनी लेते हैं शूज की, लाइक लिबर्टी एंड बाटा, if we will try to search out some differences between them, then I hope बहुत ही minor difference नजर आएगा दोनों के बीच में, तो that is known as the dissonance reducing behavior। या आप कोई भी अगर आइसक्रीम खाते क्वालिटी वॉल्स के लेते हो और उसके साथ क्रीम बेल की लेते हो, तो यू विल फाइंड अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस, so this is what your fewer difference between the brand, this is known as the dissonance reducing buying behavior। इनके अंदर हमारे बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इस बाइंग के अंदर। सेकंड है हमारी लो इन्वॉल्वमेंट बाइंग होती है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड, वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, मतलब लो इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना ज्यादा हम नहीं करते कि हमें पता लग गया है कि हाँ इस ब्रांड में ये इस अगर पार्ले जी का ये ब्रांड है इट इज फाइन तो हम ये ले लेते हैं, अगर इसका ये ब्रांड है ये अच्छा है हम ये ले लेते हैं, तो हमने क्या करा वैरायटी ले ली किसी चीज की, तो हम उसमें हैप्पी हैं, ठीक है। तो इनमें हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, हमें पता लग गया इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है या इस शॉप पे हम रेगुलर जाते हैं ये प्रोडक्ट है तो ये अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, और जो ब्रांड्स होती है ना वो यूजुअली इतनी जल्दी से अपनी वैरायटी चेंज नहीं करते हैं, उनके टेस्ट सिमिलर रहते हैं, आफ्टर अ प्रॉपर रिसर्च वो एक एक प्रोडक्ट को भी सोच समझ के मार्केट में निकालते हैं। नेक्स्ट इज फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रांड्स, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, मतलब इनमें ना बहुत ही कम डिफरेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपने शुगर खरीदी किसी एक शॉप से लेते हो नेक्स्ट से लेते हो, दे वुड बी द सेम, ठीक है। तो उनमें ज्यादा हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज योर, there are three types of consumer decision making process, ठीक है। दो टाइप के consumer decision making process होते हैं। The buying process begins when consumer recognizes an unsatisfied need। कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न कब शुरू होता है, जब वो देखता है कि उसकी कोई नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मीन्स उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एंड फॉर कमिंग आउट दैट प्रॉब्लम ही बाइज द थिंग, देन दे सीक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सेटिस्फाई द नीड, वांट, प्रोड्यूस products might be useful and how they can be bought। कि मतलब उसमें वो कैसे करते हैं कि कैसे हमें अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, कैसे हमारे लिए प्रोडक्ट यूजफुल होगा और कैसे हम उसको खरीदें। Customer evaluate the various alternative sources of merchandising such as stores, catalogs and internet and choose a store or an internet site to visit or a catalog to review। अब इस केस में क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढते हैं किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए। सपोज अगर मुझे कल क्या करना है, मुझे एक मिक्सी खरीदनी है, मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है, फॉर बाइंग अ मिक्सर ग्राइंडर व्हाट आई विल डू, आई विल सर्च आउट ऑल द थिंग्स, फर्स्ट आई हैव द फर्स्ट एंड द प्रिलिमिनरी सोर्स, मेरे पास क्या होता है, एक मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में ऑनलाइन ऐप होता है, आई विल गो थ्रू द ऑनलाइन ऐप, ठीक है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो है सर्च कर लूंगी कितने ब्रांड्स हैं, क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या, एक आइडिया हो जाता है मुझे प्राइसिंग का, ठीक है। मैंने सब कुछ देख लिया, प्राइस देख लिया, ब्रांड्स देख लिए, ठीक है। जब मैंने प्राइस देख लिया, ब्रांड्स देख लिया, मुझे पता लग गया कि हाँ मार्केट के अंदर बजाज की है, केतान की है, इन सब की है, ठीक है। इन सब में ये प्राइसेस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उनके प्राइस देख लिए, फिर
मैं क्या कर सर्च करूंगी, जो मेरे नियर बाई मेरे रूट में शॉप पड़ती है, मैं उनके पास जाऊंगी, फिर उनसे पूछूंगी डू यू हैव दैट ब्रांड, डू यू हैव दैट ब्रांड। तो ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे वहां से हो सकता है कोई नया ब्रांड मिल जाए जो लोकल ब्रांड है वहाँ का, लोकल प्रोडक्ट हो कोई, या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट भी मिल जाए। मैं रेट मैच करूंगी, फिर मैं देखूंगी, सोचूंगी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर जब भी whenever the next holiday come, first holiday come, I will go to the proper shop, ठीक है। मैं फिर एक प्रॉपर शॉप पे जाऊंगी on which I suppose that there will be a chances to get all the brands। फिर उस शॉप पे जाके क्या करती हूँ, सारे ब्रांड्स को इवेल्युएट करती हूँ, ठीक है, सबकी प्राइसिंग मैच करती हूँ, सबकी ऑनलाइन प्राइसिंग मैच करती हूँ, और उसके बाद ऑफलाइन प्राइसिंग मैच करती हूँ, ब्रांड्स देखती हूँ कौन सा ज्यादा लॉयल है, कौन सा ज्यादा ओल्ड है, देन आई टेक डिसीजन टू बाय द जूसर एंड मिक्सर। सो दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मीन्स की, और उस चीज के लिए क्या है, मैं इंटरनेट पे भी सर्च करूंगी, मैक्सिमम रिव्यूज देखते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। दिस एनकाउंटर विद अ रिटेलर प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन एंड मे अलर्ट customer to additional needs. After evaluating the retailer's merchandising offering, customers may make a purchase or go to another retail to collect more information, as I have discussed with you कि ठीक है, मैं पहले ऑनलाइन चेक करूंगी, उसके बाद अपने नियर बाई स्टोर से चेक करूंगी जो मेरे ऑन द वे पड़ेगा, उसके बाद किसी दिन हॉलीडे के दिन उस स्पेशल ऑब्जेक्टिव को रख के मैं आई विल सर्च आउट और मोर ऑप्शन ऑन शॉप। फाइन। Next is your eventually customer make a purchase, use the product and decides whether the product satisfy their need or not। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, देन दे डिसाइड कि whether the product is satisfying their need or not। Just hold on class। राइट क्लास, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर आफ्टर सेल डिसीजन देखते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा रहता है इन सम सिचुएशन कस्टमर लाइक आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिटेलर्स मर्चेंडाइजिंग, तो हमने डिसीजन ले लिया। इन सम सिचुएशन the customers like Sanya spend considerable time and after selecting a retailer and evaluate the market. In some other situation, buying decision are made automatically with little thought। एक में क्या होता है, वो सारा कुछ इवेल्युएट करती है, सब कुछ सर्च आउट करती है, उसके बाद डिसीजन लेती है। और नेक्स्ट में क्या करती है, उसको कुछ ज्यादा इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी उसने देखा उसके बेस पे उसने डिसीजन ले लिया बाय करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका three types of customer decision making process। First is extended problem solving। extended problem solving होती है extended problem solving is a purchase decision process in which customer devote considerable time and effort to analyzing alternative। extended problem solving में हमेशा क्या होता है, we do more workout on our problem। जैसे क्या होता है कि कई बार we have a certain problem, ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में होती है, तो हम पहले अपने माइंड से ही सोचते हैं कि उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक्सप्लोर करते हैं चीजें माइंड में सोचते हैं। उसके बाद फिर कोई अपना हमारा फ्रेंड होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं यार मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करी जा सकती है, तेरे पास कोई आइडिया है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँ, उसने मुझसे सजेशन मांगा है। फिर वो जो आपको सजेशन देगा, आप उस पर थोड़ा सा थॉट करोगे,
ठीक है। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा टेंटिवली अपनी मॉम से डिस्कस करोगे, हाँ मम्मी कुछ ना ऐसे हो गया है तो बताओ मैं ना कैसे करूँ, कुछ मम्मी को उसमें मैनिपुलेट करके प्रॉब्लम में कुछ मदर को बताओगे, फिर मदर बोलेंगी हाँ तुम्हारा, तो मदर भी आपको कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास 3 सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम के, एक वो जो आपके फ्रेंड ने बताया है, एक वो जो आपकी मदर ने बताया है, एंड वन इज विद योर माइंड। आप उन चीजों को अच्छे से एनालाइज करोगे, सब कुछ देखोगे, और जिस चीज के साथ आपको प्रॉब्लम है उस फैक्टर को भी पूरे कंसीडर करोगे, देन यू विल टेक द डिसीजन। तो दिस इज नोन एज द एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, एंड आई वांट टू बाय अ न्यू कार, आई नो आफ्टर 1 year माय कार will not be allowed in the NCR region due to the expiry of the car, as my car is of petrol and it could stay in NCR region I think शायद 15 years कर सकती है। तो इसलिए मुझे एक नई कार खरीदनी है। अब मुझे पता है मेरी कार 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो अब मेरे को कार खरीदनी है। तो कार खरीदने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल थिंक कि मेरा बजट क्या है, बजट डिसाइड कर लूंगा पहले अपना। ठीक है, मेरा बजट 7 लाख का है, तो 7 लाख का अगर मेरा बजट है तो उसमें कौन कौन सी कार आ रही है, ठीक है, मैंने सारी लिस्ट बना ली सब कार की। उसके बाद उनमें से जो कार आ रही है मैं ये चेक करूंगी कौन कौन से ब्रांड्स की है, उन ब्रांड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है, सब चीजें मैंने देखी। ठीक है, उनमें से मैंने कुछ थोड़े बहुत पर्टिकुलर ब्रांड आउट कर लिए पूरे सिस्टम से। तो उन ब्रांड्स को फिर मैं एनालाइज करूंगी ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ की वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस। ठीक है, मेरे जितने भी रिश्तेदार होंगे, जो भी मैंने सर्च आउट करा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों से जिसके पास भी जो कार होगी मैं उनसे पूछूंगी कि हाँ आपने नहीं कार, ठीक है, कैसे चल रहा है आपका रेस्पॉन्स, एज ए वर्ड ऑफ माउथ, एज ए पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पूछते हैं कि भाई हाँ आप बताओ आपकी मतलब कैसी चल रही है कार, ठीक है भी एवरेज जितना बताती है कंपनी कैसी चलने में है, मे बी आई विल टेक द टेस्ट ड्राइव ऑफ एवरी कार। ठीक है, तो मैं उस एक कार को खरीदने के लिए विच कॉस्ट अराउंड 7 लाख आई विल स्पेंड अराउंड 7 to 8 months। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं उस चीज पे एक प्रॉपर हो दूँ। बट अगर आपको कोई हेयर कट कराना है तो हेयर कट कराने में आप क्या जाओ करोगे, जो आपका एक परमानेंट है आप बिना सोचे समझे उसके पास चले जाओगे। उसके बाद अगर उसकी शॉप बंद मिलती है तो फिर सेकेंडरी सोर्स में आपको सोचना पड़ता है कि अब हम किसके पास हैं। इसके तो या तो आप ये करोगे कि घर वापस चले जाओगे, बट इट इज इन केस इट इज अर्जेंट तो आप क्या करोगे, किसी भी सेकंड ऑप्शन के लिए सर्च करोगे। तो एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा आपकी वो अप्रोच होती है इन विच यू डू मैक्सिमम वर्कआउट। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करते हो। बेसिकली ये उन चीजों में होता है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिनको हम ज्यादा टाइम नहीं करते। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ परचेज डिसीजन प्रोसेस इन विच customer devote considerable time and efforts to analyze alternatives। कि जितने भी alternatives हमारे पास अवेलेबल होते हैं, we take time to analyze all the alternatives, right? Customer typically engage in extended problem solving when the purchase decision involves a lot of risk and uncertainty. If we feel like there is a lot of risk in buying any unfit product or in तो उस केस में हमें क्या है, इस चीज पे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिस्क, वी हैव मेनी टाइप ऑफ रिस्क इन बाइंग द प्रोडक्ट impulsively। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क अराइज व्हेन कस्टमर परचेज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमने ज्यादा महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया और उसकी इतनी वर्थ नहीं थी तो भी हमें रिस्क है। जैसे अगर अब मेरे पास 1 साल का टाइम है कार खरीदने का, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये कार खरीदनी है, then I can wait for the Shairam or Diwali so that the offers will come and I will buy a new car. So तो उसमें मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, पर मैं अगर दशहरे को खरीदूंगी तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। So physical risk are type of risk when customer feels a product may affect their health or safety। ठीक है, तो फिजिकल रिस्क यानी किसी भी महंगे प्रोडक्ट को खरीदने की जब आपकी हेल्थ इफेक्ट हो जाए या कुछ भी इफेक्ट, ठीक है,
और तो आप इस चीज को भी ध्यान में रख के प्रोडक्ट खरीदोगे। मीन्स अगर मैं कोई कार खरीद रही हूँ तो मैं उसमें सेफ्टी फीचर्स भी देखूंगी। सोशल रिस्क वह है वो है व्हेन कस्टमर बिलीव अ प्रोडक्ट विल इफेक्ट हाउ अदर्स विल। तो जब कस्टमर ये देखेंगे कि दूसरे प्रोडक्ट को वो उसी सेम प्रोडक्ट को वो कैसे परसेप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स एंगेज इन एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन दे जस्ट लास्ट। तो इसमें हमारी क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। जब भी हम कोई नई कार खरीदेंगे तो हमें ये तो फील होगा कि हाँ हम यार ऐसे खरीदे कि 10 लोग इसकी तारीफ करें, या हम अच्छा आउटफिट क्यों पहनते हैं, हम अच्छा आउटफिट इसलिए तो पहनते हैं कि सब लोग हमारी तरफ देखें। ठीक है, वो मतलब वो हमारी तारीफ करेगी बहुत व्हाट अ ड्रेसिंग सेंस शी हैज, और हम अच्छे लगेंगे। जब हम अच्छे लगेंगे तो तभी तो लोग हमारे को एक ग्रुप से अलग देखेंगे कि इन दिस ग्रुप दैट पर्टिकुलर गाय और गर्ल इज मोर अट्रैक्टिव देन एनीवन एल्स, राइट? So there are consumers engage in extended problem solving when they are making a buying decision to satisfy an important need, or when they have little knowledge about the product or services. Like I want to buy a laptop. Laptop के केस में extended problem solving है। हम लोग ऐसे एकदम शॉप पे जाके और उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग कि हमें कितनी पावर बैकअप चाहिए, कितना हमें उसका चार्जिंग चाहिए, क्या हमारा यूसेज है, उसी के हिसाब से तो हम लैपटॉप खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कस्टमर गो बियॉन्ड देयर पर्सनल नॉलेज टू कंसल्ट विद फ्रेंड फैमिली मेंबर्स और एक्सपर्ट। इन दैट केस कस्टमर किस किस के साथ करता है, फ्रेंड के साथ करता है, फैमिली मेंबर्स के साथ करता है, एक्सपर्ट के साथ करता है। दे मे विजिट सेवरल रिटेलर्स बिफोर गोइंग अ परचेज डिसीजन। अलग अलग रिटेलर्स के पास जाएगा, बार बार देखेगा किसके पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, और हर रिटेलर के पास जिसके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो उस प्रोडक्ट की अलग से आपको बताता है कि हाँ इसका ये बेनिफिट है, संदेह था, अगर आप इसको लोगे तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। Retailers influence customer engage in extended problem solving by providing the necessary information in a readily available and easily understandable manner by offering money back guarantees। तो उन्हें बता देते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तो हम आपका पैसा भी आपको वापस कर देंगे सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिटेलर्स गेट सेड मर्चेंडाइजिंग इन्वॉल्विंग extended problem solving provide brochures describing the merchandise and its specification. Having information displays in a store such as sofa cut in half to show its construction and use salesperson to make its presentation and answer question. अब जैसे क्या है, कोई भी सोफा सेट है, ठीक है, हमें खरीदना है, जो ऊपर क्लोथ लगा देते हैं, अच्छा क्लोथ लगा देते हैं, टेबल में क्या करेंगे, पॉलिश अच्छे से कर देंगे, तो हमें ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा हमें अट्रैक्टिव करती है। ठीक है, बट क्या एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, कट पीस करके रख रखा है सोफे का उसी का ऊपर। ठीक है, थोड़ा साइड से उसने स्टिचिंग नहीं करी है, उसको वहां से थोड़ा सा अनस्टिच रहने दिया है, और उसमें दिखा रहे लोगों को कि सर देखो मैंने यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म मटेरियल यूज करा हुआ है, मेरे सारे मटेरियल में यही है सोफे में, और इससे क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज बेस्ट सुटेड टू यू, और मैं जो पैसा आपसे गारंटी कर रहा हूँ वो वही है, एंड आई एम टेकिंग द वारंटी ऑफ दीज कुशंस अप टू अ ईयर ऑफ 5 to 6, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास आना, मैं उसको फ्री करके दूंगा, उससे पहले आपको देगा। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आजकल सोफा सेट भी किसी बड़े प्रोडक्ट से कम नहीं होती। Limited problem solving. Limited problem solving is a purchase decision process involving a moderate amount of effort and time. Customer engage in this type of buying process when they have some prior experience with the product or services and their risk is moderate. ठीक है,
अब जैसे क्या है, सपोज अगर मुझे कोई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आई हैव अ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है, और मुझे अब फुली ऑटोमेटिक खरीदनी है, तो मेरे पास तो सेमी का एक्सपीरियंस है, मैं फुली ऑटोमेटिक कैसे खरीद पाऊंगी? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। तो जो हम सेमी से ऑटोमेटिक खरीदेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये एग्जांपल है कि ठीक है, मेरे पास पहले से ही ऑटोमेटिक थी और अभी भी मुझे ऑटोमेटिक खरीदनी है, तो मुझे पता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मतलब अगर मुझे खरीदनी है तो उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे सेविंग हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें कौन सी कंपनी बेस्ट है, ठीक है। अगर मैंने यूज नहीं करी, खुद से नहीं यूज करी, तो आई डोंट नो कि कैसे मुझे डिसीजन। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा बेसिकली यही होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज पहले से ही है, बस हमारे को केवल इतना है, हमारा रिस्क फैक्टर उस चीज में कम हो जाता है। अगर मैं स्कूटी के बाद कार खरीदने जाऊंगी तो मेरे को मेरी जो फर्स्ट कार होगी उसमें मेरा रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। बट एक कार मैं पहले यूज कर चुकी हूँ और उसके बाद सेकंड कार खरीदने जाऊंगी तो मेरा रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती तो रिस्क फैक्टर हमारा ज्यादा हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेमी टू फुली, ठीक है। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ परचेज डिसीजन प्रोसेस, अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम इन दैट यू नीड टू हैव अ मॉडरेट एंड एक मॉडरेट एफर्ट चाहिए और टाइम चाहिए। अगर मैं लैपटॉप फर्स्ट टाइम बाय करने जा रही हूँ तो मेरा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और अगर मैं उसे सेकंड टाइम बाय कर रही हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मेरी जो भी प्रॉब्लम मैंने पहले फेस करी होती है, उन प्रॉब्लम मेरे दिमाग में होती है वो प्रॉब्लम, तो आई गो टू व्हेन आई टेक अ डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट, तो मैं उन सब प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखती हूँ और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट। Customer engage in this type of buying process when they have some prior experience with the product or services and their risk is moderate. In these situations, customer tend to rely more on personal knowledge than on external information. मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं उस केस में पर्सनल नॉलेज पे बिलीव करते हैं, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे नहीं करते हैं। जैसे क्या है, a person who is related to computer science and IT industry. So he has all the knowledge about all the functioning softwares and all the computer parts. If there is a this type of microprocessor in this, so how it will work out? ठीक है, तो उन्हें सब नॉलेज होती है। जब उन्हें इस चीज की नॉलेज होती है तो उन्हें किसी से पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। दे डायरेक्टली गो टू द शॉपकीपर एंड आस्क रैम रोम की क्या है, कितना स्टोरेज है इसके अंदर, कितना बैट कितनी देर में ये चार्ज हो जाता है, तो आप उससे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। सो दिस इज कॉल्ड द लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे को पहले से पता है कि लैपटॉप के सब पार्ट्स की मुझे नॉलेज है, आई एम अ हार्डवेयर पर्सन और आई एम अ सॉफ्टवेयर पर्सन, आई हैव ऑलमोस्ट ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू दैट, ठीक है। So in these situations, customers try to rely more on personal knowledge than on extended information. They usually choose a retailer they have stopped at before and select merchandising they have bought in the past. The majority of customer decision making involves limited problem solving. Relations attempt to reinforce this buying behavior when customers are buying merchandising from them. If customers are shopping elsewhere, however, retailers need to break this buying pattern by introducing new information or offering different merchandising or services. Just ठीक है, तो इसमें वही है आपका सारा कि हमारी जो है, अगर हमने पहले से ही प्रोडक्ट खरीद रखा है और हमारे पास नॉलेज है तो वी हैव अ लेस रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिटेलर्स encourage impulse buying behavior by using prominent displays to attract customers attention and stimulus a purchase decision. For example, sales of a grocery item are greatly increased when the item is featured in an end sales display. Best buy, जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज फ्री होती है मॉल्स में, ग्रोसरी शॉप में जो भी चीज बाय वन गेट वन होती है, शॉप सॉस के पाउचेस होते हैं या कुछ भी या आपके वेफर्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, बाय वन गेट वन होते हैं, तो यूजुअली वो उनको अपने सेल्स काउंटर पे रखते हैं, सेल्स काउंटर पे बिलिंग काउंटर पे रखते हैं। तो बिलिंग काउंटर पे रखने से क्या होता है, वो मैक्सिमम लोगों की नजर में आ जाते हैं। जब वो मैक्सिमम लोगों की नजर में आ जाती है तो लोग उन्हें बाइंग जल्दी करते हैं, राइट। फाइन।
For example, sales of a grocery item. Next is habitual decision making. हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग होता है एक प्रोसेस जिनमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रोज डेली यूसेज की चीजें, ठीक है, ठीक है, जैसे मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे बाथ सोप चाहिए, ठीक है, और मेरे को पेट्रोल भरवाना है स्कूटर के अंदर, ठीक है, या मेरे स्कूटर का मेंटेनेंस है तो मुझे पता है एक ही शॉप पे जाना है, जो हमारी डेली के, हमें कोई स्टेशनरी आइटम लेना है, ठीक है, हमें, तो ये सब हमारे हैबिचुअल डिसीजन जो हमारी हैबिट्स की वजह से क्रिएट होते हैं। Habitual decision making is a purchase decision involving little or no conscious effort. Today, customers have many demands on their time. On one way they cope with this time pressure is by simplifying their decision making process. इसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड होता है। ब्रांड लॉयल्टी एंड स्टोर लॉयल्टी आर एग्जांपल ऑफ हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी होती है और सब कुछ, जैसे हम क्या करते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं रेगुलर बेस पे, उसी से अपना 1 मंथ का सारा ग्रोसरी आइटम फुलफिल कर लेते हैं, और टॉयलेटरीज ले लेते हैं टॉयलेटरीज वाली शॉप से, और हमारा कोटा पूरा हो जाता है, दैट इज फुलफिल्ड फॉर अ मंथ। तो हमें उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। जैसे आई हैव आल्सो फीस वन ग्रोसरी स्टोर, on a monthly basis I go to him and buy all the products, and if I found that this product I have not used earlier, I ask the grocery person, I ask the gross shopkeeper, he usually suggests me whether to buy or not. If he found that item is not useful for them, so he denied and we do not take decision to buy the product. So this is somewhat what he that do not require much efforts to gather the information. So this is called the habitual decision making. In it we have certain, like if I want to buy a cooking oil, I want to buy a cooking oil, so I have freeze one oil that I will buy this one oil. If I want to use a tea, I have freeze my choice that I will buy that oil. So in that you need, that is your preference, that is your taste, in which you will not compromise for things. राइट, जैसे हम कुछ नया भी ट्राई करते हैं, वैरायटी भी ट्राई करते हैं, बट देन आफ्टर वी बाय दोस थिंग आल्सो इन अवर ग्रोसरी चेकिंग, कि जो चीज हमारी रेगुलर है, जो घर में सबको पसंद, वो भी आती है। तो दैट इज कॉल्ड द हैबिचुअल डिसीजन मेकिंग। टूथपेस्ट है वो सबके सेम रहते हैं, डिटर्जेंट्स है वो सबके सेम रहते हैं। सो इसमें हमारी ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। So next we will do tomorrow. Let me take your attendance. अभिषेक शर्मा, आदित्य राज, प्रेजेंट मैम। आनंद भाटी, आनंद वर्मा, अंशुमन भारती, आयुष, भानु प्रसाद, भानु, प्रेजेंट मैम। भव्या, भावना, बुलबुल, प्रेजेंट मैम। देव, देवांश, हिमानी, हिमानी, जतिन वाधवा, जया कुमारी, प्यासा,
कोमल शर्मा, Present, ma'am. मानस आहूजा, मोहन मेहता, मोहित कुमार, मुस्कान कालरा, Present, ma'am. नैना ग्रोवर, Present, ma'am. Naina, was you present yesterday? Yes, ma'am. So why are marked absent? मैम मैंने आपको बोला भी था कि मेरी प्रेजेंट लगा देना, तो आपने बोला हाँ मैं लगा देती हूँ। Okay, beta, I marked it. हाँ जी। निशांत शेखर, पारस, राची, Present, ma'am. प्रीतम, Present, ma'am. प्रिंस, Present, ma'am. पुनीत गिरी, Present, ma'am. राहुल यादव, सागर ग्रोवर, सॉरी राहुल, रितेश मक्कड़, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, संतोष, विक्रमजीत सिंह. So this is your now today our month has been completed now. ठीक है, we have 16 lectures in the whole month from 2nd of September to 30 September. ठीक है, अगर किसी का भी कोई इशू है अभी अटेंडेंस को लेके मेरे सब्जेक्ट में तो अभी मुझे बता दो. अभिषेक शर्मा was present in only 3 classes, right? Aditya Raj was present, was absent on 2 days, 6 and 7. क्योंकि फिर कंपाइल हो जाती है तो फिर आप लोग बोलते हो कि मैम हमें प्रॉब्लम है. ठीक है, हमारी अटेंडेंस सही नहीं लगी है. ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है. आदित्य राज आप 2 दिन एब्सेंट थे, 6 और 7, 13 और 14 को, राइट? यस आदित्य. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Anand Bhati was absent throughout the session and Anshuman Anand Verma present था केवल एक दिन, that is 17 September. Yes, Ayush was absent throughout all the lectures. Bhanu, you were absent. You was absent on 6th September. Absent थे आप? हाँ जी मैम. है ना? ठीक है. Okay. Yes, Bhavya Arora was absent throughout all the lectures. Yes, Bhavna was present only in 3 lectures. Bulbul, you was present on 2nd September. ठीक है, 13, 14 and 29 and 30, right? Yes, ma'am. Dev was absent throughout the lectures. Devansh also. Himani, आप 3, 4, 14, 21 and today also. Jatin Wadhwa was absent throughout. Himani absentee 6, 7, 14, 21. Yes, Himani आज भी absent है. जतिन वाधवा पूरा था. जया कुमारी पूरे में absent. जिज्ञासा भी. कोमल आप absent थे बेटा 2 days. Yes, 15 and 23. Yes, कोमल 15 और 23 को absent